So we want to okay. My request is one, everybody can everybody to keep the thing mute while the presentation is going on. We'll give you everyone a chance to put their questions and queries in this workshop. Oh, there is a small brief introduction of the subject, followed by an understanding that what are you are expecting from this course, followed by the sharing of the content. So that is there. And in case there is anything which is not still not elaborated or you want to specially clear it up, we will do that. So, give me 1 minute. Welcome everyone to this workshop. Next 1 minute, we will start. Just give me 1 minute. There will be a voice, sir. Prakash ji will. I just unmuted myself. 2 minutes लगेंगे.
हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं. I'm just waiting for Bhushan sir as I think joined. Bhushan sir, welcome. सर आप अनम्यूट कर सकते हैं. You are allowed to unmute. So I think you should mute everyone by default. I'm doing that, sir. Because like when we'll be having question and answer sessions, so Let me go people open will it. raise the hand and then you allow them to Correct. speak. By default, you mute all. Right, sir. Right. I'll do that. Just 2 minutes. So let me start this session now. Now, since Bhushan sir is there. Just a minute. We were actually a small group internally where I am also there, and they had done certain course from Harari, and still there were some queries and there were certain areas which need to be addressed. So everybody wanted that. Then we took an initiation. And Badhavan Saab, thank you for this vision that you had, and you allowed me to take an initiation in this. And thank you to Bhushan sir who agreed to come and present and the subject. So my name is Niket Kapoor and I am a professional astrologer by background, and a professional numerologist and into other cosmic sciences. We also run an app called Siri Cosmic. I would not take much time on my introduction. I will hand it over to Bhushan sir, and he can from here do the initiation. Bhushan sir, you can please start. Bhushan sir, can you unmute yourself and start it? Should I share the thing or you would? Bhushan sir, can you hear me? Just a minute, sir. मैंने आपको unmute करने के लिए कहा. I have to. Just a minute, sir. मैं आपसे पहले host बनाऊं. 2 minutes दीजिए. Sorry. Little 11th hour wrong glitches. Bhushan sir. Bhushan sir, can you hear me? Yes, I can. Now I am able to unmute myself. Thanks. आप unmute कर लीजिए. मैं बाकी मैं आपको No, that is okay. What you can do is you can mute all and then just unmute me. That will be okay. Or if you want, I can raise. I was trying to pin you up so that just can you? And give me the presentation right, if possible, because I need to write something on my screen. Just share video. Make me host. Yeah, that's what I'm saying. That's what I'm trying to do. Okay. Where are you? So, okay, just a moment. I'm not able to. I will send you the request. You can write. You just click my name, Karmaphalam. Okay. And you can give me the. Yeah, I have got it now. Got it? Yeah. So just say allow me to be host. Make host. Yes, I have done that. Sir. Okay. Okay, that's great. Yeah, I have done that. Now you will be able to share it yourself? Yeah, I should be. Okay. Okay, that's great. Yeah. So good afternoon to everyone. My name is Bhushan Ashtikar. I am basically from Nagpur. As a profession, I was in computer services for like 25 years, but astrology being my fashion, I am studying astrology for last 18 years. I hope Hindi या English दोनों भी आप लोगों को comfortable रहेगा. So I'll try to prefer it in Hindi. Okay, there are 7 people in. Why you have enabled waiting room? Let people join directly.
Okay, I am admitting all now. Okay. Okay. Okay, that's great. Hmm. So this is a very small introduction I have. Rest will more on KP. हम लोगों का जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, जिसलिए हम लोगों ने ये वेबिनार रखा हुआ है, बिकॉज वी हैड मेनी क्वेरीज इन पास्ट. हम लोगों को काफी लोग पूछते थे कि हॉरर के ऊपर, प्रश्न ज्योतिष के ऊपर एक सेशन रखिए या एक कोर्स डिजाइन कीजिए जिसमें हम लोग प्रश्न शास्त्र के ऊपर बात करेंगे. तो प्रश्न के लिए सबसे अच्छी ब्रांच जो मानी जाती है आज के तारीख में वो केपी मानी जाती है, क्योंकि कई सारे ऐसे सूत्र उसमें दिए हुए हैं जिससे बहुत आसानी से हम लोगों को एनालिसिस करने में भी मदद होती है और रिजल्ट भी बहुत एक्यूरेट निकलते हैं. वैदिक और ताजिक ये भी पद्धतियां हैं जिन पद्धतियों से हम लोग प्रेडिक्शन दे सकते हैं, लेकिन उनमें और केपी में एक छोटा सा अंतर है जो मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊंगा. केपी यदि आप लोगों को पता नहीं है तो मैं उसका एक छोटा सा, क्योंकि कुछ लोग होंगे जिनको केपी पूरे तरीके से पता नहीं होगा, तो आई जस्ट टेक 5 to 10 मिनट जस्ट टू एक्सप्लेन कि केपी और वैदिक में कितना डिफरेंस आ जाता है. ठीक. देखिए होता क्या है कि जब भी हम ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में एक सीक्वेंस होता है जिसके माध्यम से आप किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं. इसके लिए एक मैं छोटा सा उदाहरण आप लोगों को देना पसंद करूंगा कि यदि आप लोगों को पिज्जा खाने की इच्छा है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पिज्जा के शॉप में पहले फोन करेंगे. ठीक है, फोन करके हम पूछेंगे कि कोई विशिष्ट प्रकार का पिज्जा अवेलेबल है या नहीं. तो इसे कहते हैं प्रॉमिस चेक करना. हम लोगों ने प्रॉमिस चेक किया कि भाई पिज्जा, ठीक है पिज्जा का शॉप तो है, लेकिन हमें जो पिज्जा खाना है या हमें हमारी जो इच्छा है वो इच्छा वहां पे पूरी होगी या नहीं होगी. क्या इसका मतलब है कि हम लोगों को पिज्जा खाना मिल गया? नहीं, हमें पिज्जा खाने को नहीं मिला है. फिर हम दूसरा सवाल पूछते हैं कि बनने में कितना समय लगेगा. इसे कहते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉमिस. ये प्रॉमिस को बनने में कितना समय लगेगा. सामने वाला व्यक्ति कहेगा कि इसको 30 मिनट लगता है. फिर हम तीसरा सवाल पूछते हैं कि इसको डिलीवर करने में कितना टाइम लगेगा. डिलीवर का मतलब होता है कि वो पिज्जा लाके आपके घर को डिलीवर कर दे. तो डिलीवरी ऑफ प्रॉमिस ये तीसरा स्टेप हो गया. तो जब ये तीसरा स्टेप हो गया तो क्या इसका मतलब है कि पिज्जा आपके घर पे आ गया तो आपको खाने को मिल गया? जी नहीं. उस 1 घंटे के दौरान ऐसा हुआ कि आपके कोई मित्र अपने परिवार के साथ आ गए जिनके बच्चे भी थे, उन्होंने पिज्जा देखा और पिज्जे के ऊपर टूट पड़े और उन्होंने पिज्जा खा लिया. तो देयर आर एक्सेप्शंस व्हिच विल डिनाई द प्रॉमिस इटसेल्फ. तो ज्योतिष जो है, चाहे आप ज्योतिष की कोई भी शाखा ले लीजिए, चाहे आप भृगुनंदी नाड़ी ले लीजिए, केपी ले लीजिए, वैदिक ले लीजिए, जैमिनी ले लीजिए, नक्षत्र ले लीजिए, नवतारा नक्षत्र ले लीजिए, किसी भी शाखा में आप चले जाइए, आप किसी भी शाखा में चले जाइए, उस शाखा में आपको इन 4 स्टेप्स को फॉलो करना ही पड़ेगा. ऐसा नहीं होगा कि आप ये स्टेप्स बिना फॉलो किए किसी भी प्रश्न का उत्तर दे. ये संभव नहीं है. हाँ, कोशिश की जा सकती है, लेकिन जितना मेरा अनुभव रहा है उस अनुभव में मैंने कभी देखा नहीं है कि इसका, इन प्रश्नों का हम लोग उत्तर दे सकते हैं. तो वैदिक जो है, वैदिक में तो ये मेथड पूरे तरीके से काम करता है. वैदिक में ये मेथड पूरे तरीके से काम करेगा, केपी में भी काम करेगा. केपी ये कहता है कि वैदिक के जो सूत्र है, उन वैदिक के सूत्रों में कॉम्प्लिकेशंस काफी है. ठीक. वैदिक के सूत्रों में 1 मिनट रुकिएगा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. मेरे बगल वाले घर में शायद कोई ड्रिलिंग का काम है, लेट मी स्टॉप देम, जस्ट गिव मी अ मोमेंट.
Sir will be right back in 2 minutes. He's just ensuring that further और recording में disturbance ना जाए, because जितना disturbance जाएगा उतना बाद में सुनना मुश्किल होगा. That's why he's just ensuring that session goes smooth and it's well hearable. सर क्या ये रिकॉर्डिंग मिलेगी हमें? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही सर. मैम ये रिकॉर्डिंग ऐप पे डल जाएगा. ओके, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ डल जाएगा, वहाँ देख ठीक है. लीजिएगा. कोशिश करेंगे इसको यूट्यूब पे भी डाल दें अपने, और वो लिंक ठीक शेयर है. करें आपके साथ, आप यूट्यूब पे भी देख सकते थैंक यू. हैं. अभी मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई सवाल ना करें. हम सेशन खत्म करेंगे, उसके बाद सवाल का मौका मिलेगा सबको, तो कि एक बार कर लें, बिकॉज एक फ्लो बना होता है मेंटर का जो प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो प्रेजेंट एक बार बन जाता है, चीज समझ में आती है. हो सकता है कि किसी की कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन हो जो वो सुनना चाह रहे थे और वो शायद नहीं बोली गई, तो हम उसको एड्रेस करेंगे. वी विल नॉट इवेड इट. कोशिश यही है कि सबको यहाँ से मैक्सिमम आंसर्स मिलके चले. क्वेश्चन जी अभी स्टार्ट हुआ है, वेट करें. हैं? अभी आप सवाल अपने आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. मैंने अभी वो काम अभी बंद करा दिया है. एक मिनट सर, मैं सिर्फ थोड़ा सा एड्रेस करता हूँ. मैं हम्म. ये कह रहा हूँ कि आप अभी जितने भी आपके सवाल हैं आप नोटेड रखिए. आई एम श्योर बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होंगी, कुछ लोगों ने ऑलरेडी करा हुआ है, तो उनकी एक स्पेसिफिक नीड है जिसको वो सुनना चाहते हैं. तो सर को पहले प्रेजेंट करने दीजिए व्हाट ही इज गोइंग थ्रू, क्या चीज है, क्या फॉर्मेट है. उसके बाद अगर कोई भी चीज आपको पूछनी है पूछिए, हमें भी समझ में आ जाएगा कि आप हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हम उसके बेसिस पे डिजाइन करके आपको प्रपोज करेंगे. थैंक यू सर, आप स्टार्ट करें. ओके, थैंक यू. तो एक एक टेक्निक है, एक पद्धति है जिसमें स्टेप बाय स्टेप मेथड से हम लोग किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं. उसकी क्वालिटी कितनी रहेगी ये हर शाखा के डेप्थ के ऊपर डिपेंड होता है कि उसमें हम लोगों ने कितनी पढ़ाई करी है. ये सवाल मुझे कई बार पूछा जाता है कि कौन सी शाखा सबसे अच्छी है. सारी शाखाएं अच्छी है. सारी शाखाओं से आपको एक्यूरेट आंसर्स मिलेंगे ही मिलेंगे. डिपेंड करता है कि आपने कितनी पढ़ाई करी है. ठीक. तो हम लोग जब भी किसी शाखा की पढ़ाई करेंगे, उस शाखा में सबसे पहले किसी भी घटना का वचन माने प्रॉमिस क्या है ये देखेंगे. उसके बाद देखेंगे कि ये घटना तैयार होने के लिए कितना समय लगेगा और डिलीवरी कब होगी, यानी ये घटना कब घटित होगी, और इसमें कोई व्यत्यय आएगा क्या, इसमें कोई रुकावटें आएंगी क्या, जिसे कहते हैं एक्सेप्शन डिनाइंग द प्रॉमिस इटसेल्फ. अब वैदिक में क्या होता है, वैदिक में बड़ा साधारण सा और सिंपल सा सूत्र है कि जब भी हम किसी ग्रह के माध्यम से किसी प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करते हैं, तो भाव, भावेश और कारक, ये जो तीन एंटिटीज होती है, ये जो तीन घटक होते हैं, इनके माध्यम से उत्तर देते हैं. इससे हमें पता चल जाता है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में किसी घटना का वचन है या नहीं है, प्रॉमिस है या नहीं है. जैसे शादी एक घटना है. व्यक्ति पूछेगा मेरी शादी कब होगी, ये प्रश्न ही अपने आप में गलत है. सबसे पहला प्रश्न ये होना चाहिए कि क्या शादी का वचन मेरे जीवन में है या नहीं है. अगर इसका उत्तर हाँ है तो सेकंड स्टेप है कि फिर एग्जीक्यूशन कब होगा, डिलीवरी कब होगी. ठीक है. तो इसको देखने का जो तरीका है वो है भाव भावेश कारक पद्धति. सर्वार्थ चिंतामणि नाम से जो क्लासिक है, उस क्लासिक में इसका उल्लेख किया गया है, जिसको मुख्य तौर पे वैदिक ज्योतिष में सभी लोग मानते भी हैं और फॉलो भी करते हैं. ये है प्रॉमिस. भाव भावेश कारक पद्धति जो है, इसका इसका उपयोग जो होता है ये प्रॉमिस में होता है. ठीक है, मैं इसको लिख दे, ये हम लोग आपको दे देंगे. इसमें हम प्रॉमिस चेक करते हैं. ठीक है. उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉमिस जो है, इसके लिए हम विंशोत्तरी दशा का यूज करते हैं.
दशा ये एक टाइमिंग मैकेनिज्म सिस्टम है। मैं आशा करता हूं कि जितने लोग यहाँ ज्वाइन हुए हैं उनको वैदिक या ज्योतिष का कुछ तो पता होगा, तो मैं इसके डेप्थ में नहीं जाऊंगा। विंशोत्तरी दशा ये टाइमिंग का सिस्टम है। जो डिलीवरी है, एक मिनट रुकिएगा, सिक्योरिटी वेटिंग रूम निकाल दिया जाए। ओके, डिलीवरी जो है वो ट्रांजिट देता है, जिसे गोचर कहा जाता है। और एक्सेप्शंस के अपने आप में बहुत सारे रूल्स। जो लोग वैदिक थोड़ा बहुत जानते होंगे उनको पता होगा, अष्टक वर्ग है, षोडश वर्ग है, ठीक है। उसके बाद में योग है, कई प्रकार के योग होते हैं, तो इनके माध्यम से हमें एक्सेप्शंस पता चलते हैं। यहां पर वैदिक की पद्धति मैंने आप लोगों को बताई है। केपी इससे अलग है। केपी क्या कहता है कि भाई प्रॉमिस एग्जीक्यूशन डिलीवरी जो है मैं ग्रहों से ही बताऊंगा, मैं भावों का उपयोग करके ग्रहों के माध्यम से इसका उत्तर दे दूंगा। इसमें उनका कहना है कि हर ग्रह किसी न किसी भाव को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे हम लोगों को पता है कि मेष लगन की यदि कुंडली देखी जाए, उदाहरण के तौर पे ये कुंडली देखी जाए, तो यहाँ पे वृश्चिक लगन 8 नंबर लगन है, तो मंगल पहले भाव का स्वामी हो गया। जहां पे उसकी दूसरी राशि है वहां का भी वो स्वामी हो गया, छठे का, और बैठा हुआ है वो 8वें भाव में। तो वो 1, 6 और 8 का रिजल्ट देगा। वो उसका वो उसके लिए उसका रिप्रेजेंटेटिव हो गया। तो हर ग्रह के पास अपने कुछ नंबर्स होते हैं, वो किसी न किसी भाव को रिप्रेजेंट करता है। तो ग्रहों के ग्रुप्स बनाए गए हैं। केपी कहता है कि हमारे पास ग्रह होगा, उसका नक्षत्र स्वामी होगा, नक्षत्र स्वामी भी कोई ना कोई ग्रह ही होगा, और फिर उसका उपनक्षत्र स्वामी होगा, ठीक है। इन सभी के पास कोई ना कोई नंबर्स होंगे। तो जो ग्रह होता है उसके माध्यम से रिजल्ट नहीं आते, रिजल्ट देता है नक्षत्र। और उसकी रिजल्ट की जो क्वालिटी है वो बताता है उपनक्षत्र। तो हम ये कह सकते हैं कि केपी में जो एक्सेप्शन डिनाइंग प्रॉमिस कंसेप्ट है, एक्सेप्शन डिनाइंग प्रॉमिस, ये उपनक्षत्र द्वारा दिया जाता है। जो रिजल्ट है यानी एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉमिस, ये आपको नक्षत्र देगा। और प्लैनेट जो होता है, प्लैनेट को कहते हैं सोर्स। रिजल्ट आएगा नक्षत्र के माध्यम से, उपनक्षत्र स्वामी बताएगा कि मैं इसको रिजल्ट को होने दूंगा या नहीं होने दूंगा। तो एक्सेप्शन ऑफ डिनाइंग प्रॉमिस की जो अथॉरिटी है वो सिर्फ उपनक्षत्र के पास, ठीक है। कई बार ये देखने में आता है कि नक्षत्र जो है वो किसी घटना को नकार रहा है, लेकिन उपनक्षत्र ने उसको हाँ कर दिया, तो वो घटना हो जाएगी। लेकिन नक्षत्र ने हाँ कर दिया और उपनक्षत्र ने उसको ना कर दिया तो घटना नहीं होगी। इसी का अध्ययन हम केपी में करते हैं। ये केपी का एक प्रकार है जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी घटना का एनालिसिस कर सकते हैं। जो लोग केपी में इंटरेस्टेड है या जो केपी में कुछ पढ़ाई करते हैं उनको यह भी पता होगा केपी में एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र कहिए या दैवी मदद कहिए, जिन्हें कहते हैं रूलिंग प्लैनेट। रूलिंग प्लैनेट वो होता है कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो, ठीक है। अभी अगर इसी समय के हम लोगों को रूलिंग प्लैनेट देखने हैं, मैं दिखा देता हूं। लगन का स्वामी यानी असेंडेंट लॉर्ड, चंद्रमा का राशि का स्वामी, चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी और डे लॉर्ड, ये चार जो है इन्हें रूलिंग प्लैनेट कहा जाता है, ठीक।
ये चारों भी ग्रह होते हैं, इन चारों ग्रहों के माध्यम से भी एक प्रणाली है जो आपको आपके प्रश्नों का उत्तर दे देगी। लेकिन जब ये आपको आपके प्रश्नों का उत्तर देगी तो इसे, इस प्रणाली में भी, इस मेथड में भी आपको प्लैनेट, नक्षत्र और उपनक्षत्र का जो टेबल है उसका उपयोग करना ही पड़ता है। एक तो आप डायरेक्टली कर ले, यहां पे मैं आपको दोनों पद्धतियां बता रहा हूं कि आप एक तो यहां पर डायरेक्टली इसी मेथड से उत्तर दे दें, या फिर आप जॉइंटली दोनों के मेथड से भी उत्तर दे सकते हैं। अब यहां पर आते हैं कि वैदिक ज्योतिष में और केपी ज्योतिष में क्या अंतर है, या ताजिक और वैदिक। ताजिक बोले तो वैदिक, वैदिक ज्योतिष में प्रश्न ज्योतिष ये एक बहुत छोटा हिस्सा रहा है। मुख्य तौर पे वैदिक में ताजिक पद्धति जो है उसी को प्रश्न ज्योतिष के माध्यम से उपयोग में लाने की पद्धति रही। ताजिकिस्तान जो एक राष्ट्र हुआ करता था, वहां की वो डेवलप की हुई पद्धति थी जो हमारे यहाँ पर आमतौर पे यूज होती है आज के तारीख में। अगर आप नॉर्थ में देखें तो आपको नॉर्थ इंडिया में ताजिक पद्धति का ही उपयोग मिलेगा। वैदिक में जो कुछ बदलाव किए जाते हैं वो बहुत कम है और बहुत कम लोग उसे जानते हैं। वैदिक और ताजिक प्रश्न पद्धति का लिमिटेशन ये है कि वो एक ही प्रश्न के लिए काम करेगा। केपी ये एक से ज्यादा प्रश्न के लिए भी काम करती है। ये इसमें मूलभूत फर्क है, दैट इज द बेसिक डिफरेंस। वो कैसे होता है ये मैं आपको बता दूं। जब भी हम वैदिक पद्धति से या ताजिक पद्धति से किसी की प्रश्न कुंडली बनाते हैं, उदाहरण के तौर पे हमने अभी यहां पर एक कुंडली बना ली, इसी वक्त तो मीन लगन उदित हो गया है, बृहस्पति है और इस प्रकार के इसके ग्रह बने हुए हैं, तो उसके अपने खुद के सूत्र रहेंगे जिनके माध्यम से आप उस प्रश्न का उत्तर दे दो। अगर वो व्यक्ति अपने बच्चे के बारे में प्रश्न पूछता है तो आप 5वें भाव को लगन बना लेंगे और फिर सारे रूल्स लगा के उत्तर दे दोगे। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति आता, जैसे बच्चों के बारे में पूछ लिया था, ठीक है, अगर कोई इसी वक्त आया और अपने पत्नी के बारे में पूछना चाहता है तो आप 7वें भाव को लगन बना लीजिए। ये सॉफ्टवेयर में ये फीचर है, इसकी वजह से मैं इसको यूज कर रहा हूं। तो इसको लगन बना के मैं तुरंत सारे प्रश्नों के, यानी एक प्रश्न जो पूछा जाएगा वैदिक या ताजिक पद्धति से, मैं उसका उत्तर दे सकता हूं। इसके बाद नहीं कुछ कर सकता। इसके पहले क्या हुआ था ये नहीं बता सकता। अब हम केपी में आते हैं। केपी में प्रश्न बनाने की एक पद्धति है। केपी कहता है कि आपको होररे का नंबर चूज करना पड़ेगा। इसमें 3 प्रकार की सिस्टम्स है, 1 से लेके 249 के बीच में, 1 से लेके 2993 और 1 से 972। सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाली सिस्टम 1 से लेके 249 वाली सिस्टम है, और 1 से लेके 2193 जो है वो केपी का एक सब वर्जन है, उसमें यूज होती है। केपी में भी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोर्स में हम ये भी पढ़ाएंगे कि ये नंबर्स बनते कैसे, वो अभी मैं विस्तार नहीं कर सकता, इसलिए मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आप लोगों के, आप म्यूट कर लीजिए कृपया करके। मैं अभी आप लोगों को अनम्यूट करने की परमिशन नहीं दूंगा। तो 1 से लेके 249 के बीच में आप कोई भी नंबर डालिए, जैसे मैंने 77 डाल दिया और मैंने ओके कर दिया। ये प्रश्न कुंडली जब केपी की बनती है या वैदिक की बनेगी, वो जहां पर ज्योतिष बैठा है उसी स्थान की बननी चाहिए, ये हमेशा याद रखिएगा। व्यक्ति जहां से आपको पूछ रहा है उसकी नहीं बनेगी, ज्योतिषी जहां पे बैठा हुआ है उसकी बनेगी। तो हम इसको ओके कर देंगे। ये ओके होने के बाद हम लोगों को इस प्रकार से इसका टेबल मिल जाता है, जो मैं आपको बता रहा कि ग्रह है, ग्रह की कुछ नंबर्स है, उसके बाद में उसका राशि स्वामी है, उसका नक्षत्र स्वामी है, उसके अपने नंबर्स है, और उसका उपनक्षत्र स्वामी है। व्यक्ति का जो भी प्रश्न रहेगा उसको सूत्रों के माध्यम से हम लोग उत्तर देंगे। यहां पर वैदिक से ये अलग कैसे हो जाता है। अब उदाहरण के तौर पे देखिए कि शुक्र की महादशा चल रही है, राहु की अंतर्दशा चल रही है और ये प्रश्न कुंडली बन गई थी। 2014 से शुक्र की महादशा शुरू हुई है, 2018 तक थी। शुक्र में शुक्र की अंतर्दशा, सूर्य जो है वो 2018 से 19, चंद्रमा 2019 से 20, मंगल 20 से 21, और इस प्रकार से सारे ग्रहों की अंतर्दशाएं आ रही। अब अगर हमको ये जानना है
कि शुक्र में 2014 से लेके 18 के बीच में क्या हुआ, तो हम शुक्र ग्रह का जो टेबल है, इसको स्क्रिप्ट कहा जाता है, केपी में इसे स्क्रिप्ट कहते हैं। तो हम लोग इस स्क्रिप्ट को एनालाइज करेंगे। इसमें राहु जो है ये इनको रिजल्ट दे रहा है, और उसकी जो क्वालिटी बता रहा है वो है केतु। तो ग्रह जो भाव उनको मिले हैं उनके माध्यम से रिजल्ट देते हैं। तो जो भी प्रश्न हो, जैसा ये अगर व्यक्ति अगर मुझे पूछता है, या मैं इसको पूछ लूंगा कि 2014 से लेके 18 के बीच में आपने क्या घर बनाया है, क्योंकि घर का जो कॉम्बिनेशन केपी में है, केपी कहता है कि यदि 4, 11, 12 आपका नक्षत्र स्वामी दे दे, और वही 4, 12 आपका उपनक्षत्र स्वामी भी देते, यानी उसने कंफर्म कर दिया, तो वो व्यक्ति घर बनाएगा। तो आपको उत्तर मिलेगा हाँ। तो केपी जो है वो सिर्फ आने वाले घटनाओं के बारे में नहीं बताएगा, पिछली घटनाओं के बारे में भी आपको बताना शुरू कर देगा। ये इसकी ब्यूटी है। दूसरा, जब आप लोगों को सूत्र पता हो जाएंगे तो आप लोग भी इसको एनालिसिस करना शुरू करेंगे। जैसा यहाँ पर 8 नंबर आया हुआ है, तो हम कहेंगे कि यार क्या आपने आपकी कुछ सेविंग्स को तोड़कर घर बनाया था, या आपको आपके ससुराल से पैसे मिले थे, या आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिली थी जिसको आपने मॉडिफाई कर दिया। तो जो नंबर्स है वो नंबर्स अपने आप में सारा आपको जजमेंट देने के लिए हेल्प करना शुरू कर देंगे। इसके कई सारे सूत्र होते हैं, हर प्रश्नों के लिए सूत्र बने होते हैं। उसके बाद में कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स या कुछ कुछ सूत्र अलग से भी दिए होते हैं किसी प्रश्न के लिए। कुछ कुछ प्रश्न होते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति आपके पास आया और कहता है कि मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया है, क्या मुझे जॉब मिलेगी, ठीक है, या मेरा पत्र कब आएगा। किसी भी प्रकार का प्रश्न हो सकता है। तो उस प्रश्न के उत्तर के लिए कुछ स्पेसिफिक नियम भी बनाए गए हुए हैं। एक तो जनरलाइज आपको सारे के सारे सूत्र होते हैं, और कुछ स्पेशलाइज होते हैं। उदाहरण के तौर पे बता दूं कि केपी में यदि हम लोगों को जॉब के बारे में पूछना है, तो जॉब, ये तो हम सब लोग जानते हैं कि केपी में 2, 6, 10, 11 ये नंबर जॉब देते हैं। हाँ ठीक है, देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति को जॉब देने में या किस क्षेत्र में उसका जॉब होना चाहिए, उसके लिए सूत्र अलग से दिए गए हैं। ठीक है। वैसे ही किसी को अगर कोई डिसीज होने वाला है, तो डिसीज का सिम्टम कहाँ आएगा और डिसीज एक्चुअल में किस ऑर्गन में होगा, इसके सूत्र अलग दिए है। सो देयर इज अ कॉमन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स विच विल बी यूज्ड टू गिव द प्रेडिक्शंस, but then there will be support from some additional sutras, some additional principles to the main sutra. इस प्रकार का कॉम्बिनेशन पूरा के पूरा केपी में बनता है। केपी अपने आप में काफी अद्भुत है। मैं आप लोगों को उसका एक सीक्वेंस बता देता हूं ताकि आप लोगों को वो आसानी से याद रहे। ये केपी एनालिसिस करने का सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस कहता है कि आपको जिस भी प्रश्न का उत्तर ढूंढना है, सबसे पहले उसका प्रॉमिस चेक कीजिए। उसकी एक पूरी की पूरी सिस्टमेटिक प्रोसीजर है, जिस प्रोसीजर के माध्यम से हम लोग ये चेक करते हैं कि व्यक्ति ने जो प्रश्न हमसे पूछा है, चाहे वो प्रश्न किसी भी भाव से संदर्भ में हो, तो उसका वचन कैसे देखें। उसका वचन देखने की पद्धति है। फिर हम निकालेंगे कि उसका सबसे प्रोमिनेंट कार्येश कौन है, कौन कार्येश है जो उस घटना को देने में सबसे ज्यादा सक्षम है। उन कार्येशों की हम एक लिस्ट बनाएंगे। फिर हम देखेंगे कि जो रूलिंग प्लैनेट में ग्रह आ रहे हैं, वो रूलिंग प्लैनेट में से वो ग्रह कौन से हैं जो कार्येश बन रहे हैं। और जब वो कार्येश के ग्रहों की दशा अंतरदशाएं आ जाएंगी, तब वो घटना हो जाएगी। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 2 पद्धतियां हैं। एक तो आप सिर्फ ग्रहों का जो स्क्रिप्ट है, जो टेबल मैंने अभी आप लोगों को इस सॉफ्टवेयर में दिखाया था, ये जो स्क्रिप्ट है, सारे प्लैनेट्स की स्क्रिप्ट कही जाती है इसको। केपी में इसे स्क्रिप्ट कहते हैं, या आप टेबल बोल लीजिए, सिग्निफिकेटर टेबल बोल सकते हैं। तो
जो सिग्निफिकेटर टेबल है उसके माध्यम से, उस स्क्रिप्ट के माध्यम से आप सीधा सीधा उत्तर दे सकते हैं, या फिर आप रूलिंग प्लैनेट के माध्यम से जो ग्रह सबसे बलिकार्येश हो रहा होगा उसको पकड़ के भी उत्तर दे सकते हैं। दोनों भी पद्धतियां हैं और हम लोग इस केपी के कोर्स में दोनों पद्धतियां सीखेंगे। तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण पद्धति है जिसे नाड़ी ज्योतिष कहते हैं। नाड़ी ज्योतिष एक्चुअली नाड़ी से कंफ्यूज मत हुई, इसका संबंध भृगुनंदी नाड़ी या नाड़ी के किसी ग्रंथ से नहीं है। वैदिक केपी का ही एक सब ब्रांच है जिसे नाड़ी ज्योतिष कहा जाता है, जो दिल्ली में काफी पॉपुलर है। उनके अपने खुद के कुछ अलग से नियम, हम लोग उन नियमों के द्वारा भी पढ़ेंगे कि प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया जाए। तो ये जो टोटल कोर्स रहेगा ये करीबन 1 महीने का कोर्स रहेगा। वीकेंड्स पे रहेगा, सैटरडे और संडेज को 2 ही दिन क्लासेस होगी और करीबन 7 या 8 क्लासेस होगी इसकी। जो कोर्स कंटेंट है ये निकेत आपसे शेयर करेंगे। इस कोर्स में कई सारे ऐसे क्रिटिकल क्वेश्चंस है, जैसे उदाहरण के तौर पे कि कोई व्यक्ति आपके पास एक प्रश्न लेके आता है और किसी व्यक्ति के बारे में पूछता है, तो ये कैसे चेक करें कि वो जिस व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछ रहा है वो व्यक्ति जीवित है या नहीं है। इसका उत्तर भी आपको केपी में मिल जाएगा। दूसरा, जो ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही है और जो रूलिंग प्लैनेट्स आए हुए हैं उनके माध्यम से आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति के मन में अभी प्रश्न क्या होगा, ये क्या पूछ सकता है। इसकी एक बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी आपको केपी दे देता है। आमतौर पे लोग जब बहुत परेशानी में होते हैं तो वो इसका इंतजार नहीं करते, लेकिन हाँ, अगर आप होररी सीखना चाहते हैं, प्रश्न ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो इतना नॉलेज हम लोगों के पास होना चाहिए कि व्यक्ति किस प्रकार से कौन सा प्रश्न लेके हमारे पास आएगा। और एक चीज देखने में आई है कि जो ज्योतिषी होते हैं आमतौर पे जब ये प्रश्न पत्रिकाओं के ऊपर काम करना शुरू करते हैं तो हमेशा देखिएगा कि किसी दिन आपके पास जो भी व्यक्ति आता है आमतौर पे उनके प्रॉब्लम सेम होते हैं, वो सेम टाइप के प्रॉब्लम लेके आते हैं और जो रेमेडीज आप देते हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम होती है उस दिन के लिए। ये एक अभ्यास का विषय है, इसके ऊपर थोड़ा फोकस कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अगर जस्ट लिख के रखना शुरू कीजिए आपके किसी नोटबुक में कि दिन में कितने लोगों ने आपसे प्रश्न पूछा था और क्या प्रॉब्लम था उनका और आपने रेमेडी क्या दी थी। लगभग रेमेडी सेम होती है। ठीक है, तो हम लोगों का ये जो कोर्स रहेगा ये प्योरली हम लोगों ने केपी होररी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है, क्योंकि उसी की सारी हम लोगों के पास इंक्वायरीज आ रही थी। और इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, हम लोग जो टॉपिक्स है वो तो निकिता आपको बताएंगे। हम लोग केपी होररी कवर करेंगे, केपी होररी के एडिशनल रूल कवर करेंगे और साथ में हम लोग नाड़ी के माध्यम से, जो नाड़ी ज्योतिष नाम से बहुत फेमस है, जो केपी का ही ब्रांच है, हम उसको यूज करके भी प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए जा सकते हैं ये भी देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग प्रश्न उत्तर के लिए मैं सेशन ओपन करता हूं। आप लोग हैंड रेज कीजिए और प्रश्न पूछिए, मैं आपको अनम्यूट करूंगा। जिसको भी प्रश्न होगा वो कृपया करके अपना हाथ उठाइए। जूम में अगर आपको पता हो तो ठीक। हाँ बोलिए नवरत्न जी। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें वो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का भी है क्या कुछ? हाँ डेफिनेटली बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन भी होगा, क्योंकि अगर रूलिंग प्लैनेट हम पढ़ेंगे तो उसमें वो भी आएगा। पर वो ओके क्योंकि होररे का पार्ट नहीं है साहब, वो रूलिंग प्लैनेट का पार्ट। अच्छा ओके ओके सर। ओके, हाँ गुलशन जी बोलिए। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे ये केपी एस्ट्रोलॉजी है तो ऐसे करके आपने बताया, मतलब मेरे को भी पता है कि काफी ऐसी एस्ट्रोलॉजी होती है। तो हम शाखाएं होती है। हाँ शाखाएं होती हैं। तो मैंने आपका बीएनएन करके कोई कोर्स था, हम्म, उस टाइम मैं थोड़ा आउट ऑफ वहां पे था, तो मैं आपका बस यही ऐसा डेमो अटेंड कर पाया था, मैं कर नहीं पाया था और उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं मिलती आपने कहा था। हम्म, तो उसमें मेरा ये प्रश्न है कि वैदिक को फादर बताया गया है सारी एस्ट्रोलॉजी का, हम्म। और ये जो कोर्स रहेगा ये केपी एस्ट्रोलॉजी पे फुली, मतलब फुल कंप्लीट कोर्स रहेगा, या इसमें
वो चीजें रहेंगी कि फर्स्ट पार्ट है ऐसा कुछ करके? नहीं नहीं नहीं, ये केपी होररे का फुल कोर्स रहेगा। केपी का कोर्स नहीं रहेगा ये। केपी का कोर्स अपने आप में बहुत बड़ा कोर्स होता है, वो 2-3 महीने का कोर्स होता है। ये केपी होररे, केपी प्रश्न शास्त्र के ऊपर डिजाइन किया गया कोर्स रहेगा। अच्छा, तो इसमें सर वैदिक ज्यादा सीखना बेस्ट ऑप्शन है, अगर प्योरली अगर अपन ज्योतिष में एंटर होना चाह रहे हैं या हम्म ज्योतिषी उसमें आना चाह रहे हैं, तो हम्म उन चीजों को सीखने के लिए जैसे काफी लोगों से मैंने सलाह की है, तो उन्होंने यही बताया है कि वैदिक ज्यादा बेस्ट है। अगर आप वैदिक से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके ये नहीं, सब वैदिक पार्ट्स आ ज्यादा जाते बेस्ट नहीं है, वैदिक फाउंडेशन है। हैं। शुरू तो हमेशा फाउंडेशन से ही करना चाहिए। सही जी बात। जी। तो इसमें फाउंडेशन भी रहेगा वैदिक का? जी नहीं, यहाँ पे वैदिक नहीं रहेगा। मैं वही तो क्लियर कर रहा हूँ आपको कि जी। यहाँ पर हम सिर्फ केपी होररे के बारे में बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे पूरी केपी कवर ही नहीं कर रहे, ना ही वैदिक कवर कर रहे हैं। केपी प्रश्न ज्योतिष, बस इतना ही विस्तार रहेगा इस पूरे कोर्स। अच्छा, तो जैसे सर अगर ये कोर्स करते हैं, सीखते हैं, तो हम्म इसमें आफ्टर दैट अगर जैसे कोई भी मोस्टली आजकल लोगों के हेल्थ इश्यूज रहते हैं, करियर रिलेटेड, लव हम्म रिलेशनशिप और ये मनी फाइनेंस, इन सारी चीजों से और भी कोई हम्म पार नहीं जाता है, बस इतने ही क्वेश्चन रहते हैं इन सारी चीजों को बताने के करेक्ट लिए। तो ये करेक्ट। जो अपन इसमें बताएंगे, तो ये इसमें हम्म सारी चीजें इंक्लूड रहेगी, आ जाएगी क्या? देखिए, मैं 1 मिनट, निकेत निकेत, ओके 1 मिनट रुकिएगा। इस कोर्स में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे ये मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ताकि आपको ये पता चल जाए कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है। प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी मेथोडोलॉजी बताएंगे, डिफरेंसेस ऑफ वैदिक और केपी एस्ट्रोलॉजी के बताएंगे। केपी एस्ट्रोलॉजी, केपी होररे और नाड़ी ज्योतिष में क्या डिफरेंस आता है ये बताएंगे। केपी होररे की जो, जैसे मैंने बताया कि 2 प्रकार होते हैं, एक तो रूलिंग प्लैनेट के साथ आप कर सकते हैं या रूलिंग प्लैनेट के बिना कर सकते हैं। और जो टॉपिक्स रहेंगे वो है इलेक्शन एस्ट्रोलॉजी, जॉब चेंज प्रमोशंस, हाउस कंस्ट्रक्शन, रिलोकेशन, फॉरेन स्टे, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म फॉरेन ट्रिप, मैरिज डिवोर्स, केपी वास्तु, कौन है जो मैच जीतेगा, मिसिंग पर्सन कमिंग बैक टू होम, इलेक्शन टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, डिजायर्ड जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, और वास्तु दोष कैसे देखेंगे, और बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। ये इस कोर्स का पूरा विस्तार रहेगा। ठीक है। गुलशन जी, शायद मैंने आपको जवाब दे दिया होगा आपका जो जी प्रश्न था जी कि जी कोर्स का जी। कंटेंट क्या रहेगा। तो 2 हम्म। सेशन रहेंगे, टॉपिक 1 से लेके 4 तक, 3 सेशन रहेंगे 5 और 6 के लिए, और 2 सेशन रहेंगे टॉपिक 7 से 10 तक, जिसमें प्रश्न और उत्तरों को भी, प्रश्नों के उत्तर भी दिए जाएंगे। ओके। तकरीबन 1 महीना ये कोर्स चलेगा। जी। सर वो ठीक। बीएनएन नालडी वाला आपका कोर्स फिर से कब आएगा, क्योंकि वो मिस हो गया था मेरे से? साहब अभी इतना टाइम ही नहीं है, क्योंकि मेरे काफी सारे कोर्सेज चलते रहते हैं। अभी नेक्स्ट टाइम देखते हैं कब करते हैं। अच्छा, इसके पहले आएगा भी कोई उसका। कोर्स चल रहा है क्या सर? हाँ, मेरा वैदिक का भी चल रहा है। उसके बाद में पिरामिड वास्तु भी चल रहा है, तो टाइम स्लॉट एक ही सर मिलता है मुझे, तो कुछ नहीं कर पाता हूँ। अच्छा, वैदिक का अगर सर रिकॉर्डिंग मिल सके तो वो मैं उसके लिए भी ज्वाइन करना चाहूंगा। वो आप मुझे अगर ऑफलाइन कांटेक्ट कर लीजिए, ये दिस इज नॉट द फोरम। अच्छा, ओके, ठीक है सर। ठीक, ओके। जी। धीरज जी बोलिए। प्रणाम सर। प्रणाम। सर सबसे पहले एक्चुअली 2 चीजें पूछनी है। फर्स्टली तो सर ये कि आपने बोला इसको प्रश्न ज्योतिष, तो प्रश्न हम्म ज्योतिष में जो ये आपने कंटेंट लिखा हुआ है, इन प्रश्नों के हम आंसर्स दे सकेंगे इस कोर्स के हम्म बाद? हम्म और मतलब यही चीज है सर, मतलब मैं मतलब बिल्कुल सही कर राइट? आपकी वॉइस कट रही है साहब। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा ना कि केपी अपने आप में एक बहुत बड़ी मतलब कोर्स है, और ये हम्म केपी हो रही है मतलब प्रश्न करेक्ट ज्योतिष आपने बोला है इसको। तो करेक्ट। इसके अंदर आपने कंटेंट्स लिखा है, तो जैसे इलेक्शन एस्ट्रोलॉजी, जॉब, प्रमोशन इन जॉब, हाउस कंस्ट्रक्शन, तो हम इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के हम आंसर दे पाएंगे मतलब इस कोर्स को करने के बाद? करेक्ट।
प्रश्न ज्योतिष उसी के लिए होता है ना कि व्यक्ति आपको आपके प्रश्न आकर आपको प्रश्न पूछता है और आपको उसका उत्तर हाँ या ना जैसे चीजों में देना पड़ता है, लॉजिकल आंसरिंग करना पड़ता है, करेक्ट? ठीक ठीक है सर। और हाँ सर जी। जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बेसिक नॉलेज आपसे मैंने प्राप्त करी है, तो वैदिक में जैसे मतलब हम आपने हमें कुछ ये बताया था कि कुछ पर्टिकुलर प्लैनेट का अगर कॉम्बिनेशन होता है तो हमें ये रिजल्ट मिलता है। तो अभी थोड़ा सा आपने मतलब शॉर्ट में ये बताया था कि जैसे 147 या फिर कुछ ऐसे ऐसे नंबर्स अगर हो जाए तो हमें मतलब ये पर्टिकुलर रिजल्ट्स मिलते हैं। तो केपी के अंदर सर ये नंबर्स का ही सारा रोल रहेगा? हाँ, केपी में पूरा नंबर्स का रोल, यानी केपी में ग्रहों का रोल होता है, लेकिन ग्रहों से ज्यादा भावों का रोल होता है। ओके। और वैदिक में ग्रहों का रोल बड़ा होता है। ठीक ठीक है सर। ठीक है, ओके। सुमन जी बोलिए। राधे राधे सर। राधे राधे। सर मैंने केपी नहीं की है अभी, लेकिन ये होरारी मैंने पहले भी किया था जो सर से, तो मुझे इतना समझ नहीं आया था। तो क्या मैं इसको कर सकती हूँ? हाँ, कर सकते हैं। आपका गोल क्या है, यानी व्हाट डू यू वांट टू डू विद केपी होरर? सर आप यही है कि जैसे अभी हमने बेसिक तो निकेत भाई तो मुझे जानते हैं, तो हम्म उनको पता है। हम थोड़ा वैदिक वैदिक किया है मैंने जो सर से। तो ऐसा ये नहीं है कि मैंने फुल कोर्स किया है, फुल कोर्स नहीं हम्म किया है, हम्म वैसे बेसिक कर रखा है। तो लेकिन ये होरारी का मैंने जो सर से किया था, तो मुझे उस टाइम भी कुछ इतना खास समझ नहीं आया था। तो क्या नहीं, इसके बात लिए ये है ना, केपी ये है जरूरी है? सुमन। हाँ, केपी, हाँ आप कह सकते हो। वैसे होरारी के लिए पूरे तरीके से केपी जरूरी नहीं है कि, क्योंकि केपी होरर में आपको सीधा हाँ या ना में जवाब मिल जाता है। लेकिन आप अगर केपी करेंगे तो केपी ये अपने आप में बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि उसके डिटेल स्टडी में केपी होरर है तो उसका पार्ट होता ही है बाय डिफॉल्ट, केपी एस्ट्रोलॉजी का। ठीक है, सर लेकिन वो कोर्स अपने आप में काफी लंबा होता है, तो कई बार लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं होता, तो वो पूरा नहीं करना चाहते हैं या पूरा नहीं कर पाते हैं। और शायद इसलिए ये सारी इंक्वायरीज थी कि केपी होरर के ऊपर कोई सिर्फ कोर्स बनाया जाए। सर एक्चुअल में मैंने होरारी पहले भी किया है, लेकिन मेरे को उतना मतलब जितना एक प्रिडिक्शन करनी चाहिए उस टाइप से मैं नहीं कर पा रही, तो इसलिए मैंने पूछा कि हाँ, नहीं, उसके पीछे कारण हो सकता है सुमन जी। किस प्रकार से पढ़ाया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपने कभी इस प्रकार का पिक्चर देखा होगा कि केपी की पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप क्या करनी है। नहीं सर, एक्चुअल में सर वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, पढ़ाते वो भी बहुत अच्छा है, हम ये किसी को नहीं कहेंगे, क्योंकि हो सकता है कई बार हमारे समझने में ही थोड़ा दिक्कत रह जाती है। नहीं, मेरा मानना अलग है। पढ़ना बड़ा मुश्किल चीज है। हाँ जी, मैं वही कह रही हूँ कि मेरे पढ़ना सम बड़ा भाई मुश्किल है, मैं पढ़ाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, पढ़ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन क्या होता है ना कि जब तक आप उसमें डिपिक्शन नहीं करोगे, जब तक उसमें पिक्चर्स नहीं आएंगे। हमें वेद क्यों नहीं समझ में आते हैं, हम लोग वेद क्यों नहीं पढ़ते हैं, शास्त्र क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि वहां पिक्चर्स ही नहीं है। पिक्चर रहेंगे तो फिर रामायण पूरी याद हो जाती है, जी हर सर। स्टोरी याद रहती है हर बच्चे को। तो जी आपको जब, क्योंकि मैं जब पढ़ाऊंगा तो हम प्रेजेंटेशंस देते हैं, हम आपको स्टेप वाइज बताएंगे कि कौन से स्टेप पर क्या एक्टिविटी करनी है। तो वो पिक्चर हमेशा, ह्यूमन माइंड इज मेड टू रिकॉर्ड द पिक्चर्स, नॉट द स्टेटमेंट्स। तो सर ह्यूमन माइंड जिस प्रकार से काम करता है उसके हिसाब से आप काम करोगे तो डेफिनेटली होना चाहिए। मुझे नहीं लगता दिक्कत होनी चाहिए वैसे। सर वहां भी उन्होंने पूरा कुंडली के ऊपर हमें अच्छे से समझाया था, सबको समझ आ गया था। बस हम्म मुझे ही थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। और जैसे कि अभी मेरे पास कई क्वेश्चन आते हैं, कुंडली आती है तो उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं होता, तो उस टाइम थोड़ा मुझे दिक्कत हो जाती है। हम्म तो इसीलिए मैं होरारी करना चाह रही थी। और दूसरी करेक्ट। चीज, जैसे कई बार कोई पूछते हैं कि जैसे मर्डर केस के बारे में भी कोई पूछते हैं कि इस केस का हमें कोई जमान भाई हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो बेल लिटिगेशंस। मिलेगी, हाँ जी, लिटिगेशन से बेल मिलेगी नहीं मिलेगी। तो वहां पे कहीं जाके कई बार उनके क्या होता है कि डेट ऑफ बर्थ नहीं होती, तो हम अटक जाते हैं। तो इसीलिए मैं पूछ रही थी कि मैंने केपी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि होरारी अगर पहले मैंने की है मुझे नहीं समझ आया, और फिर दोबारा मैं तो फिर होरारी की तरफ आइडियली तो जुड़ी तो। आपने केपी करनी चाहिए। फिर आइडियली आपने पूरी केपी करनी चाहिए डिटेल में। एक बार केपी का अगर फाउंडेशन आपका पक्का हो गया, क्योंकि होरारे जो है ना, कभी भी प्रश्न शास्त्र जो होता है, किसी भी शाखा का प्रश्न शास्त्र जो होता है वो एड ऑन पार्ट होता है। हाँ वो जी। शाखा पूरी अच्छे से अगर आ जाए तो ज्यादा बेहतर होता है।
हाँ जी, वही पूछ रही थी कि अगर मैं होरारी अभी फिर दोबारा ज्वाइन कर लेती हूँ और अगर मुझे फिर वही वो मेरे साथ। नहीं आया तो फिर दिक्कत है। सही बात, हाँ जी, सही बात। तो बस मेरा यही क्वेश्चन था सर कि नो प्रॉब्लम। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ विवेक जी बोलिए। सर नमस्कार। नमस्कार। सर कैसे हैं आप सर? बढ़िया, आप बताइए। बढ़िया जी बढ़िया सर। सर जैसे ये केपी का भी एक दो क्वेश्चन के आंसर तो मेरे को मिल ही गए, पूछ ही लिए उन्होंने सबने। हम्म। तो लेकिन अब मेरा केपी का सर बेस नहीं है बिल्कुल भी। हम्म। तो फिर तब ये करना ठीक रहेगा? जैसे अब सुमन जी भी पूछ रही थी जैसे अभी। हाँ नहीं भाई, मेरा ऑब्जेक्टिव इसलिए तो मैंने पूछा ना कि ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव है कि आपको वैदिक आता है और जी आपको किसी प्रश्न के लिए वेरिफिकेशन चाहिए, जैसे बर्थ टाइम नहीं है किसी का, हाँ तो जी। वो टाइम पे आपको अगर यूज करने के लिए मेथड चाहिए तो सिर्फ केपी होरर भी सफिशिएंट है। हाँ लेकिन अगर आपको केपी एज अ ब्रांच बहुत अच्छे से पढ़नी है तो फिर तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप केपी का पूरा कोर्स ही लगाएं, वो ज्यादा बेटर हो। अच्छा अच्छा, मतलब फिर केपी होरारी अगर कर सकते हैं जैसे इन क्वेश्चंस के आंसर, फिर दे पाएंगे हम इसके बाद? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, क्यों नहीं दे मतलब सकते। ये तो नहीं कि फिर जैसे कि ये सीख लें और समझ में ही ना आए आगे। नहीं ऐसा तो नहीं होता है हॉरर। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि देखिए आप यानी एक उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ कि आपको अगर एमबीए 2 साल का कोर्स होता है और हाँ आपने जी। 3 महीने का एक क्रैश कोर्स एमबीए कर लिया है, तो वो दोनों में तो अपना डिफरेंस तो रहेगा ही। नहीं हाँ जी, वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर कि हाँ एक तो एक आप वो केपी 3 महीने वाली चीज कर रहे हो, इतना याद रखिए। तो इसका स्कोप लिमिटेड रहेगा थोड़ा। लेकिन आंसर मिल जाएंगे। आंसर मिल जाएंगे। इसका 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 स्कोप अपने आप में थोड़ा लिमिटेड होता है। रिस्ट्रिक्टेड हाँ जी। क्वेश्चंस के ऊपर एक 40-50 क्वेश्चन के सेट के ऊपर ये बढ़िया काम कर जाता है। मेन तो फलित से ही है, जैसे हाँ ये क्योंकि फलित। क्या होता है ना कि प्रश्न ज्योतिष में यूजुअली उत्तर आपको हाँ या ना में मिल जाते हाँ जी, इसके लिए डेट ऑफ बर्थ की जरूरत ही नहीं है। हैं। बिल्कुल नहीं है। है ना जी सर? बिल्कुल किसी भी चीज की वो तो गोचर पे ही चलेगा सब। करेक्ट, उस वक्त की जो कुंडली है उस हिसाब से बन जाती है उस दिन की। अच्छा अच्छा, बाकी भाव से चलेगा। हाँ बिल्कुल, तो उसका टेबल जैसे बन उसमें जाते हैं, वो स्क्रिप्ट बन जाती है, उस स्क्रिप्ट के माध्यम से बन जाएगा। हर हर उसके हर क्वेश्चन के अलग अलग वो। करेक्ट। हाँ जी हाँ जी। और एक सर और बात है, जैसे ये सॉफ्टवेयर है, हम्म। इसके लिए तो सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, उसके बिना तो नहीं ये। जरूरत नहीं है, ये तो ऑनलाइन भी आपको कई सारे मिल जाते हैं, मोबाइल पे भी मिल जाते हैं, ये स्क्रिप्ट तो उसमें भी आ जाती है सारी की सारी। ऑनलाइन उतने होंगे सर? एक्यूरेसी हाँ आएगी बिल्कुल बढ़िया? आएगी, क्यों नहीं आएगी। क्योंकि अच्छा तो। देखिए बैकएंड में एफएमएरीज तो वही यूज होगी ना, कॉमन एफएमएरीज है। एफएमएरीज तो स्विट्जरलैंड वाली एफएमएरीज यूज होती है सब पूरी दुनिया में। एक नासा वाली ये है और एक स्विट्जरलैंड वाली है, तो स्विट्जरलैंड वाली सारे सॉफ्टवेयर वाले यूज करते हैं, तो उसमें कोई अंतर नहीं आता है। अच्छा, वो मिल जाएगा इजीली मतलब? वो तो ऑनलाइन किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज करके कर सकते हैं। हाँ जी, क्योंकि नहीं तो फिर ये भी मेरे ख्याल 10 12 15 हज़ार का होगा। हाँ। हाँ लेकिन आप अगर देखिए, आप अगर ज्योतिष पढ़ना चाहते हैं या ज्योतिष में करियर करना चाहते हैं, या फिर आपका अगर गोल है कि ज्योतिष में कुछ अच्छा काम करें, तो आप ये समझ के चलिए कि इसमें पैसा तो इन्वेस्ट करना पड़ता है। सस्ते में यहाँ कुछ होगा नहीं। यानी सॉफ्टवेयर भी 25,000 के नीचे कोई अच्छा वाला ढंग का सॉफ्टवेयर आता नहीं है, और मैंने तो कम से कम 2-3 सॉफ्टवेयर ऐसे खरीदे, उनको इवेल्युएट किया और फिर बाद में एक को यूज करना शुरू किया, तो कुछ पैसा तो खर्चा पक्का ही होता है। हाँ जी, वो तो सर फिर बात की बात है, जब उसके लिए तो फिर हम्म। केपीसी पड़ेगी पूरी। अभी तो वो आता ही नहीं है ना। हाँ तो फिर तब तक आप जितना फ्री में अवेलेबल है उससे कीजिए। हाँ जी, और ये केपी का सर फुल कोर्स कितने ड्यूरेशन का? ये ड्यूरेशन करीबन 2 से ढाई महीना चलता है, ये फुल कोर्स जो होता है ये काफी लंबा कोर्स होता तो आप कंडक्ट करते हैं इसको? है। हाँ जी। कब आएगा वो? ये टाइमिंग के ऊपर डिपेंड है, अगर टाइमिंग लोगों को जो मेरे लिए प्रेफर्ड है वो अवेलेबल है, तो ये तो नेक्स्ट वीक से भी शुरू कर सकते हैं, वो जैसा बैच बनेगा उस हिसाब से डिसाइड कर सकते ठीक है सर। हैं। ठीक है, थैंक यू। ओके। हाँ नवरत्न जी अब बोलिए। सर कुछ रेमेडी भी होगी क्या इसमें? रेमेडी बताओ भैया। नहीं रेमेडी नहीं होती है, यूजुअली हॉरर में आपको प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं साहब, जहां तक होते हैं। यानी प्रश्न ज्योतिष में यूजुअली रेमेडीज के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं होता है, प्रश्नों के उत्तर के ऊपर ज्यादा फोकस होता है। ज्योतिष अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें रेमेडीज बहुत होती है। ओके सर।
सर आपका वो एक कोर्स चल रहा था वो चालू हो गया है या वैदिक का? कौन सा कोर्स था? वैदिक का पूरा कोर्स था। हाँ, वो कल से शुरू होने वाला है। ओके सर। Realme 5 बोलिए। हेलो हम्म, सर, नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ सर, मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ। एक्चुअली मेरा केपी का तो एक्चुअली नॉलेज तो नहीं है बिल्कुल। हम्म, वैदिक में थोड़ा सा है। तो अगर मैं हम्म। ये केपी लाइब्रेरी सीखता हूँ तो ये कितना लाभदायक होगा? देखिए, आपको एक लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चंस के लिए इसके उत्तर मिल जाएंगे। जैसे मैंने अभी कहा कि केपी होरर का एक सीमित दायरा है, उस दायरे में वो काम करेगा। लेकिन पूरा केपी करेंगे तो पूरा केपी अपने आप में बहुत बड़ा होता है। सर इस तो कोर्स कितना है सर? क्या बोले? इस कोर्स का फीस कितना है? ये कोरा ये केपी होरर? निकेत जी आपको बता देंगे कोर्स का फीस और बाकी डिटेल्स। ओ ओके 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 ओके। ठीक है ठीक है। तो अच्छा, तो ये मतलब ठीक है सर, तो निकित जी से ही बात कर लेंगे। हाँ, ठीक है सर, ठीक। थैंक यू। यस निकेत, आपने हैंड रेज किया हुआ। मैं आपको निकेत, मैं आपको आई एम मेकिंग यू होस्ट। हम्म। ओके, यू आर होस्ट नाउ निकेत। Thank you. ओके, So, great. first of all, I hope everyone has liked the presentation, and I hope you are getting satisfied with the rewards we are giving. और दूसरी चीज सर, मेरे को ये पूछना था, अभी किसी ने क्वेरी में डाला है कि चिल्ड्रन और चाइल्ड बर्थ और यू नो मैरिटल, चाइल्ड बर्थ उसका पार्ट होगा, चाइल्ड जेंडर नहीं होगा। ठीक, हाँ, जेंडर तो नहीं होगा। डेथ हम दो चीज नहीं पढ़ाएंगे। चाइल्ड जेंडर क्या रहेगा बर्थ में, और डेथ, ये दो चीजें नहीं बताएंगे। एक सर इन्होंने पूछा है कि इसके अंदर जो है इसमें बीमारी, डिजीज तो कवर करेंगे हम, डिजीज डिसीज नहीं, लेकिन हम हेल्थ की, इम्यून सिस्टम कम ज्यादा क्या, अगर डिसीज अपने आप में बहुत अगर बड़ा किसी टॉपिक कोई है। जना हमारे पास वो सवाल लेके आता है कि मैं आदमी हॉस्पिटलाइज्ड है, व्हेन विल ही गेट रिकवरी? हाँ, तो दैट आंसर ही विल बी एबल टू डू, नॉट द कॉज ऑफ द डिसीज, और विल देयर बी एनी कॉम्प्लिकेशन, विल देयर बी न्यू डिसीज, वो नहीं बता पाएंगे। वो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, वो नहीं बता पाएंगे। वो तो हम वो फिर केपी अलग का से पार्ट होता है। लेकिन हाँ, आप हेल्थ पर्सपेक्टिव से प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर हम अलग से फिर एक वर्किंग करनी पड़ेगी हमें। हाँ, वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक अलग चीज है। तो ठीक है, मैं सर रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार वदावन साहब का कुछ स्पेसिफिक क्वेरी थी, तो हाँ, हाँ, एक बार अनम्यूट कर दिया। वदावन साहब, यू कैन अनम्यूट प्लीज। वदावन सर, आपको उनको अनम्यूट करना पड़ेगा शायद। मैं जस्ट पार्टिसिपेंट्स को देख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, पार्टिसिपेंट्स नजर नहीं। हैंड रेज कर दीजिए वदावन सर, आप हैंड रेज कर दीजिए ताकि निकेत विल गेट द नोटिफिकेशन। ठीक है सर। हाँ, उन्होंने कर दिया है, आप अनम्यूट करें उनको। आप पार्टिसिपेंट्स अगर क्लिक करेंगे ना निकेत, तो हाँ जी, आपको हैंड दिखेगा। हाँ जी, उसको क्लिक करेंगे तो आपको उनको अनम्यूट ऑप्शन दे सकेंगे। उस पे रेज हैंड्स पे क्लिक कर रहा हूँ और हाँ, सिर्फ उनके, हाँ, वहां पर क्लिक कीजिए। म्यूट ऑल पे जा रहा है ये। आप एक काम कीजिए, मुझे होस्ट कर दीजिए, मेक मी होस्ट। ठीक, कर दिया सर। ओके, ग्रेट। हाँ, बताऊं जी, आप अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ जी, बोलिए साहब। आपने आप अपने आप को अनम्यूट, हाँ, आपने फिर से म्यूट कर दिया अपने आप को। हाँ सर, हाँ, बोलिए। सॉरी नो फॉर द प्रॉब्लम, कंफ्यूजन। नो प्रॉब्लम, बोलिए। ठीक है, जहाँ तक मेरा सवाल है, जहाँ जो तो मुझे चाहिए तो दैट आई हैव गॉट, ओके, and I'm fully satisfied with the whatever you have told, and it is in fact more than what I expected, you know.
Okay, थैंक यू टू यू। सो welcome जी। निखिल जी आप अब डिसाइड कर लीजिए जैसे भी करना है, आई एम विद यू नो। ठीक है सर। अब बाकी लोग कौन हैं? प्लीज हैंड रेज योर हैंड्स। हाँ, raise your hands if you have any questions, otherwise we are good to conclude the. किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज इसको करिए, चाहे वो कंटेंट को लेके हो, चाहे फी के लिए। आई विल पुट द विद कंटेंट, हम लोग एक पोस्ट डाल देंगे ग्रुप के अंदर, यू कैन गो थ्रू इट। दिस कोर्स विल बी एनरोल्ड थ्रू आवर ऐप, दैट इज वेरी एविडेंट। मैं ऐप का लिंक ग्रुप में शेयर किया हुआ है, मैं फिर शेयर कर दूंगा, तो प्लीज इसको आप एनरोल जरूर करें ग्रुप ऐप में जाके। और इसकी रिकॉर्डिंग भी, कोर्स इवन कोर्स की रिकॉर्डिंग भी इज एक्सेसिबल ऑन आवर ऐप, बिकॉज सेंडिंग एवरीबडी अ रिकॉर्डिंग इज अ लिटिल टास्क। तो हम लोगों ने लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, आप कभी भी एक बार 10 बार 50 बार रेफर करिए, नो इश्यूज इन दैट। कभी कोई क्वेरी आती है, यू कैन पुट दैट क्वेरीज प्लीज, हम देखेंगे। वी विल कम बैक टू यू आफ्टर डिस्कशन की क्या कर सकते हैं। अभी कोर्स के बारे में तो सर ने पूरी तरह बता दिया है। सर Realme 5 हैज अगेन रेज्ड द हैंड, मे बी। Okay, हाँ बोलिए Realme। हाँ सर, नमस्ते। हम्म। सर हाँ, जैसे कि वो निखिल जी से सवाल था। सर ये पूरा केपी का कोर्स और ये केपी होरारी का दोनों का कोर्स क्या है, थोड़ा बताएंगे? और सर ये अभी जो है ये केपी होरारी का कोर्स है। केपी के कंप्लीट कोर्स के ऊपर हम लोग वर्किंग लेकर आएंगे अपनी, वो बैकएंड के ऊपर हम आपको बताते हैं वर्किंग करके। मैं सर के साथ डिस्कस करूंगा कि इसको कैसे। And we will share both the offerings in the group. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, या। तो अभी इसका कोर्स फीस क्या है, ये केपी होरारी का? ये बताएंगे अभी आपको निकेत जी। तो मैं अभी ग्रुप में डाल दूंगा ये पोस्ट दिस सेशन। हम लोग मेरे को ये आप ओके ओके टाइम दीजिए, विल पुट द हाँ, तो कोर्स फी। you will get the details in the group itself. हाँ जी, ओके आप एक एक इसका अच्छा मेलर भी बना के कल तक पोस्ट कर देंगे, ये आपके पास पहुंच जाएगा कल मेलर। मीनवाइल मैं अभी कोर्स फी डाल दूंगा। सर ने ठीक ड्यूरेशन तो बता ही दिया है, सैटरडे संडे की क्लासेस हैं 7:30 to 8:30 ही। अगर किसी को दो ऑप्शंस थे हमारे पास, एक 9:30 to 10:30 का था, बट आई थिंक 7:30 to 8:30 इज अ बेटर टाइम टू टेक द क्लास, बिकॉज 9:30 10:30 कई लोग बहुत लेट हो जाता बहुत से लोगों के लिए। फिर भी अगर आप लोगों को कोई अपना 9:30 to 10:30 अगर आप लोग मैक्सिमम चाहते हैं कि वहां तब हो तो अब कर देंगे, लेकिन 7:30 to 8:30 इज प्रेफर्ड टाइम, Saturday and Sunday on weekends, so that you are more or less free from your routine works. सर डाउन अपना हैंड डाउन कर लीजिए Realme प्लीज, अगर आप कर दिया। नहीं, वो हम लोग भी कर सकते हैं। I think Niket, we are good to go. राइट, Okay. ठीक है। Okay, that's great. Right. Thank you. Thank you Thank you all for everyone. attending the class. Thank you.